वसुतं देवं कंसचाणूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। I welcome everyone who are in temple as well as who are online. We are going forward with our study of Srimad Bhagavad Gita. We are on the 4th chapter, Jnana Karma Sannyas Yogo Nama Chaturtho Adhyaya. We are on the 4th chapter. And here on the sloka number 20, we were talking about the words Nitya Trupto Nirashraya in last session. And in last session we understood what is the meaning of the Nitya Trupto, ever contented, Hamesha ke liye jo trupta hai, and Nirashraya, one who is not hooked, whose happiness is not hooked on any object or any person. ऐसा व्यक्ति जिसकी सुख की, जिसके आनंद की परिभाषा कोई व्यक्ति या वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं है, ऐसा that is Nirashraya, that is we were talking. The person who is not object or person-based happiness, whose happiness is not dependent on that. And even after achieving the desired result, when we in our everyday life we experience the dissatisfaction, that person who is Nitya Trupto and Nirashraya doesn't feel that. He is feeling completeness and finally resulting in ever happiness. Chidananda Rupa, Chidananda Rupa Shivoham Shivo. So we talked about it and we looked into the physiology and psychology of a human being, what we are. हम क्या हैं, हम physically क्या हैं और हम psychologically क्या हैं. We talked about it. We tried to understand it. And even after being contented, how a person will keep doing his work happily. क्योंकि फिर happiness कहाँ से आएगी? And that is where we talked about the hook. I use the word hook. कि इसके ऊपर हमारी आशा, हमारा आनंद टिका हुआ है. The hook on which our happiness is hanging on. And there we talked about जिनको भगवान में श्रद्धा, आस्था या विश्वास नहीं है. Those who believe that there is no God, उनके लिए भी भगवान की जरूरत है. That is what we talked. Even though a person who doesn't believe the existence of God, he or she also needs at least the concept of the God to be ever happy. Otherwise, there will never be happiness on that person. And that is why the God is necessary. That is what we talked. Now here, there is a risk factor. And that risk factor must be attended by anyone who is talking this topic. So we will talk about that risk factor. That when we say that the God is a hook, a God is only a concept, a God is only a assumption needed to be happy, then there is a risk. The risk is, it is proved, then the God is not there. He is just a concept. अब ये हमारे यहाँ क्रिसमस आ रही है, बहुत सारे सांता क्लॉज दिखते हैं इन शॉपिंग मॉल्स एवरीवेयर, है ना. सांता क्लॉज, वी टेल द किड्स सांता क्लॉज आएंगे, गिफ्ट लेके आएंगे. सांता क्लॉज विल ब्रिंग द गिफ्ट फॉर यू. So you put your cheat under your the Christmas tree or under your pillow, whatever way you want to do, and the Santa Claus will come and he will bring you the gift. The concept of Santa Claus. But when we grow up, we understand that there is nothing like Santa Claus. It is the parents who wants to go give the gift, but the children should feel, gratitude to the God and all that. So we put a clause of Santa Claus over there. एक पात्र रख देते हैं, एक पात्र लाते हैं जिंदगी में, सांता क्लॉज. वो है ही नहीं. इसलिए बड़े होने के बाद में किसी को बोलेंगे सांता क्लॉज आए तो वो नहीं खुश होता है उतना. In other words, Santa Claus is not there. ऐसा हो जाएगा. So if we are putting the God as a concept for Nitya Trupto Nirashraya,
then what will happen? It will prove that there is no God. It is just a concept. ऐसा नहीं है. Not to develop that feeling, not to develop that incorrect understanding, to stop a misunderstanding, this point is necessary. भगवान है, मगर जो लोग नहीं मानते हैं, जिसकी श्रद्धा अभी तक उतनी नहीं बनी है, उनके लिए भी ये आर्ग्यूमेंट है कि भगवान की आपको जरूरत है. इट इज नेसेसरी फॉर दोज पीपल who doesn't believe in the existence of God. But still you will need God. That is what is required to understand and accept. And that is why this argument is there, that even though you don't believe, it is required even as a concept. Even as a concept you will need it. ऐसा कहने का यहाँ तात्पर्य है. The reason to say that. Otherwise what will happen, that people will feel that, then it is like Santa Claus. बचपन में बोला था है, मगर अभी है ही नहीं. So it was told that God is there, but God is just for the concept. It is not. ऐसा, that wrong misunderstanding should not be developed through these words, Nitya Trupto Nirasraya. And that is why it is extremely important. It is very, very important to understand that this explanation is for those people who do not believe or who has not developed still the understanding and faith and श्रद्धा और विश्वास भगवान के लिए. For those people, this argument of hook, this argument of need of God to develop the ever happiness. Now there is another important part, that when we use the words in any of the Gita study, we see that the words are same, but the whole concept behind is different. So, when we are understanding anything, we have to remember this. Let us take an example. आदि शंकराचार्य, हमारे आदि शंकराचार्य जी हो गए, उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं. आदि शंकराचार्य told that अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि. Adi Shankaracharya told, Aham Brahmasmi, मैं ही भगवान हूं. And we see that he is one of the biggest pillar of Sanatan Dharma. Sanatan Dharma समझाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, इतने बड़े उनको भक्त कहें या गुरु कहे, कैसे कहे, जो नाम आप दे सकते हैं, जैसे आप उनको समझें, इतने बड़े हो गए. उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, भगवान में मानने वाले, भगवान का काम करने वाले पूरी जिंदगी. ऐसे शंकराचार्य को हम सुनते हैं, वो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, भगवान है, मैं ही भगवान. और दूसरी ओर किसको देखते हैं? हिरण्यकशिपु, रावण, बाणासुर, ऐसे दैत्य हैं, वो भी कहते हैं मैं भगवान हूं, है ना. हिरण्यकशिपु ने कहा मैं ही भगवान हूं. उससे भी वर्ड सेम है, बिल्कुल सेम वर्ड्स, मैं ही भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि. मगर हिरण्यकशिपु और शंकराचार्य में कितना फर्क है हम जानते हैं. तो इसका मतलब यह हुआ कि एक ही शब्द कहने का भी तात्पर्य बिल्कुल विरोधाभासी या विपरीत हो सकता है. शंकराचार्य का अहम ब्रह्मास्मि और ये जो दैत्य हैं हिरण्यकशिपु, उसका मैं भगवान हूं, इसमें आसमान जमीन का फर्क है. दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. ये याद रखना पड़ेगा. So while understanding Gita also, we have to remember from which background the word is coming, from which background which word is coming. Otherwise तो रावण का और हिरण्यकशिपु का भी मैं ही भगवान हूं वही हो जाएगा जो शंकराचार्य का हम ब्रह्मास्मि है. ऐसा नहीं है. इसलिए तो that is why Hiranyakashipu told, I am the God. If your God is here in this red hot pillar, you show me. That is why he told Prahlad to go and embrace the red hot pillar. The whole Narsimha avatar, we know the story. No need to go in detail of the story. But that is what he told. So remember that the words are coming with a reason, the concept behind it. And that concept is important to understand. हमेशा, even today, the major problem today is because हम वो concept नहीं समझते हैं. कोई बड़े संत आते हैं, कहते हैं भगवान की इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता.
वी टेक इट इन ए डिफरेंट वे, और जिसने कहा है उन्होंने डिफरेंट वे से कहा है। हाँ, भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही बैठेंगे, हम काम नहीं करेंगे। ये उनका कहने का आशय नहीं था जब उन्होंने, किसी ने कहा कि भगवान के इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। रिमेंबर, ये बहुत ही जरूरी चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। उसके पीछे का तथ्य क्या है, ये जानना जरूरी होता है। खाली शब्दों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। Very important. And that is why when we are also studying Gita, we are taking it in 3 different levels. Sometimes 4 different levels, but at least 3 different levels. हम लोग शब्दार्थ लेते हैं, शब्द क्या मतलब क्या है, नित्य तृप्त, नित्य ऑलवेज, तृप्त कंटेंटेड, नित्य शब्दार्थ लेते हैं। फिर उसके पीछे का भाव क्या है वो लेते हैं, भावार्थ। द सेकंड स्टेप इज भावार्थ। आई ऑलवेज गिव दैट एग्जांपल। There is very hot sun outside, a lot of summertime, lot of heat, and there is a child, 7-year-old child is telling mama, mama, I want to go and play outside, mama, I want to go and play outside. माँ को जिद करता है बच्चा, मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। माँ बोलती है बाहर बहुत गर्म है, तू जाएगा बीमार हो जाएगा, मत खेल, मत खेल, मत जा। बच्चा जिद करता है, नहीं मेरे दोस्त भी दिख रहे हैं, मुझे भी जाना है। रोता है, जमीन के ऊपर रगड़ता है, जोरों जोरों से रो रहा है, चिल्ला रहा है। माँ परेशान हो जाती है, मदर बिकम अपसेट। क्या करेगा, ये समझता ही नहीं है। तो क्या कहती है माँ, जा मर जा। हाँ, ऐसे बोलती है ना माँ, बोलती है जा मर। अभी नाउ इसका लिटरल वर्बेटिम मीनिंग लिया जाए तो क्या होगा, माँ ने बच्चे को कहा यू गो एंड डाई, दैट विल बी द मीनिंग इफ यू ट्रांसलेट इट इनटू एज ए वर्बेटिम इन इंग्लिश। बट मदर डजंट वांट टू से दैट। मदर का ये कहना नहीं है कि जा तू और मर जा, गो एंड डाई। Mother wants to say that you are insisting, but I can't now convince you more. So go. But I am not happy that you are going, and I am not ready to agree that you should go. There is a meaning behind that word. भावार्थ देखना चाहिए, भावार्थ देखना चाहिए। And then तत्वार्थ, तत्वार्थ भी है उसके पीछे। There is a तत्वार्थ behind it. That if a smaller body like that child goes outside in the sun, there will be dehydration. The child can fall sick. That is तत्वार्थ है उसके पीछे। तत्व यही है। फिर वो चाहे छोटा बच्चा रहे, छोटी बच्ची रहे, कोई बूढ़ा बीमार आदमी रहे। Point is that if a person like that is going outside in the summer, they may get dehydrated. ये है तत्वार्थ। पहले शब्दार्थ, फिर भावार्थ, फिर तत्वार्थ। So while we are studying Srimad Bhagavad Gita, we are trying to understand all 3 meanings. ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे ऐसे है यहाँ ट्रांसलेशन। आप कौन सी बुक में पढ़ते हैं, कैसा ट्रांसलेशन पढ़ा, ट्रांसलेटेड गीता पढ़ने से उसके अंदर का तत्वार्थ आप पहचान सकेंगे? उसको तो खुद सोचना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। एंड वी आर ट्राइंग टू डू दैट फॉर ईच श्लोका। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द शब्दार्थ, द तत्वार्थ एंड भावार्थ। ओके, तो वो चौथा वाला क्या था? व्हाट वाज द फोर्थ वन? दैट इज गुडार्थ, दैट इज गुड अर्थ, द हिडन मीनिंग। हिडन मीनिंग इज अंडरस्टूड ओनली बाय द पर्सन हु इज रिलेटेड। जो रिलेटेड है उसे पता चलेगा। इन आवर लाइफ ऑल्सो वी नो, हस्बैंड वाइफ है, वो खाली एक नजर से इशारा करती है वाइफ, ओनली वन जस्ट मूवमेंट ऑफ द आईब्रो एंड द हस्बैंड अंडरस्टैंड्स द कंप्लीट थिंग। There is no word, there is no translation, there is no bhavarth or tatvarth behind it, but the whole meaning is understood just by the movement of the eyebrow, just one moment, and that is gudarth. Who can understand the gudarth? Related. Because husband and wife are related to each other, they know each other very well, so any message like that can be easily understood by the husband or wife, vice versa. That is gudarth. So if we want to understand Gudarth of the Gita, then we should relate to it. How do we relate to Gita? By the writer or the singer, जिसने कहा है उसके साथ relate हो जाओ, भगवान के साथ में relate हो जाओ, भगवान का गुडार्थ समझोगे। But at least till we reach there, it is important that we understand that to understand a Gita sloka, we are going through different levels.
And that is why it is important, I thought, that to clarify that this, contented, ये मन बोल देते हैं नित्य तृप्तो हमेशा के लिए जो contented है, ऐसा नहीं है, उसके पीछे बहुत deep meaning है. And I thought that there is the risk of misunderstanding that God is not there, He is just a concept. ऐसा नहीं होना चाहिए. It should not happen. And that is why I thought that it should be important to clarify. Also, through that word of the God and understanding, it is clarifying so many additional things. Today, we will take that also to some extent. We'll try to take some time on it. It will clarify so many things. आपके यहाँ भगवान इतने सारे क्यों हैं? Why there are so many gods? हाँ, इतने सारे भगवान को है. कोई गणपति है, कोई हनुमान जी है. Why so many gods? एक ही गॉड है ना. और हम कहते भी हैं भगवान एक ही है. भगवान एक ही है, तो इतने सारे मूर्ति क्यों रख दी, इतने सारे? दिस आंसर इज राइट ओवर देयर, बिकॉज वी वांट टू डू द एक्ट. हमें हमारा कर्म कंटिन्यूसली करना है. वी वांट टू डू अवर एक्शंस, अवर ड्यूटी कंटिन्यूसली. एवरीबॉडीज ड्यूटी इज डिफरेंट. यू कैनॉट गिव द सेम मैसेज टू एवरीवन. Not possible. This is basically, it is challenging the whole big talk of equality nowadays. It is challenging this. We should understand it. हर एक व्यक्ति अलग अलग है. We talked around 7 to 8 session ago before. What is happiness? नहीं, घर में सबको 2-2 रोटियां मिलेगी, और छोटा बच्चा 2 रोटी खाएगा, शायद उसका पेट ज्यादा भर जाएगा, ओवर ईटन. और जवान आदमी है, वो 2 रोटी खाएगा तो वो भूखा रहेगा. इक्वालिटी नहीं चलेगी. इक्वालिटी ऑफ इक्वल रिसोर्स, हाँ, सबको सरीखा ही देना नहीं चलेगा, बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट. सो इन द सेम वे, व्हाई सो मेनी गॉड्स? हर एक का कर्म अलग अलग है. शांति रखनी चाहिए, अहिंसा रखनी चाहिए, दूसरों को मारना नहीं चाहिए, दूसरे के ऊपर प्रेम भाव रखना चाहिए, दूसरों का मत का भी आदर करना चाहिए, उनको प्यार से पास में रखना चाहिए. These are good knowledge, isn't it? These sentences are really good or not? It is indeed necessary. But can we give this knowledge to the soldiers who are there to fight on the frontier? जिनके हाथ में हमने बंदूक थमा दी है, और उनको कहेंगे आप शांति रखो. हाँ, भगवान बुद्ध और महावीर का संदेश, क्षमा वीरस्य भूषणम, ऐसा उनको कहेंगे तो चलेगा? उनको तो कहना पड़ेगा, अगर कोई इंट्रूडर आता है तो पकड़ लो, सामने गोली आएगी, गोली मार दो. एवरीबडीज कर्मा इज डिफरेंट, एवरीबडीज ड्यूटीज आर डिफरेंट. व्हेन द ड्यूटीज आर डिफरेंट, योर आइडल मस्ट बी डिफरेंट. आप जिसकी भक्ति करोगे वैसे बनोगे. सो व्हेन यू आर ए सोल्जर, यू आर सपोज टू एक्ट इन वन वे. But when you are a doctor, you are supposed to act in different way. हर एक व्यक्ति का अपना अपना भगवान, हर एक का अपना अपना भगवान, हर एक श्लोक का अपना अपना अर्थ. उसमें से मुझे क्या उठाना है, what I am supposed to pick up from is my responsibility. इसके लिए इतने सारे भगवान. इतने सारे भगवान क्यों नहीं? तो बिकॉज एवरीबडी इज टाइप ऑफ ड्यूटी इज डिफरेंट. वो ड्यूटी को समझने के लिए आपको वो भगवान चाहिए. फिर आइडल बनाया तो आइडल के पीछे कुछ होना चाहिए ना. हाँ, सुपरमैन, ऐसे ही सुपरमैन बना देंगे तो नहीं समझेगा. तो स्टोरी, वन डे सुपरमैन वॉज गोइंग अबाउ, हाँ ऐसा, ये वो फला ठिकना, ऐसा स्टोरी बनाना पड़ता है, नहीं तो सुपरमैन कैसे समझेगा? वैसे ही पुराण बन गए. आप शिव पुराण पढ़ो, आपको लगेगा शिव के सिवा कोई भगवान ही नहीं है. बहुत ही ताकतवर, हाँ, विष्णु ब्रह्मा सब ऐसा एकदम निर्बल उसके सामने. जहाँ यहां देखो वहां शिव की महिमा, हाँ शिव महिमा, जहां देखो वहां शिव जी का ही महात्म्य. शिव पुराण पढ़ो, फिर विष्णु पुराण पढ़ो, विष्णु की ही महात्या. हाँ, शिव कुछ भी नहीं है उसके सामने. सबसे बड़ा कौन? विष्णु. विष्णु पुराण पढ़ो. ऐसे पुराण बनाए गए, पुराण ऐसे बनाए गए.
कोई देखने गया था क्या? और फिर भगवान का मानुषीकरण, शिव जी तप करने के लिए गए, पीछे पार्वती जी ने बच्चे पैदा किए, ऐसे घर जैसा लगता है। हाँ, हमारे समाज में बैठे ऐसा लगता है, फैमिली ड्रामा। हाँ, एक दिन रुक्मिणी जी नाराज हो गई। ऐसा हो सकता है क्या कभी? भगवान नाराज हो जाएंगे? भगवान शंकर भगवान ने बोला, अरे मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसे डायलॉग आते हैं, जिसने दुनिया बनाई, जिसने उसको पता ही नहीं था। ऐसा हो सकता है क्या? मगर पुराण, भाई पुराण क्यों बनाए गए? वो भगवान की महत्ता करने के लिए बनाए गए। जिसको सब कुछ पता है, जिसने दुनिया बनाई, उसको इतना नहीं पता? ऐसा नहीं होता। और इसके लिए पुराण बनाए गए। इतनी सारी मूर्तियां क्यों है? इतने सारे भगवान क्यों है? इसके लिए ये सब भगवान है, और इसके लिए उनके पुराण है उसके पीछे। इसके लिए पुराण बनाए। इसलिए पुराण और शास्त्र अलग अलग है। शास्त्र जिंदगी जीने के लिए समझ देने वाली चीज है, पुराण है वो मीनिंग समझने के लिए है। पुराण में जो हुआ वो होता ही, ऐसा जरूरी नहीं है। हुआ होगा, हो सकता है शायद किसी बड़े मुनियों ने, ऋषियों ने देखा, सुना रहेगा, सोचा रहेगा, मगर पुराण वो स्टोरी है। लक्ष्मी जी, सरस्वती, यहां तीन तीन देवियां, उनको लगा, उसको ईर्ष्या हुई अरुंधति जी की, कि अरुंधति सबसे बड़ी सती कौन, तो उनको ईर्ष्या हो गई। ऐसे स्टोरी आती है। क्या देवियों को, देवी देवता, उनको क्या ईर्ष्या हो सकती है? फिर वो देवी कैसे? जिसके जीवन में ईर्ष्या हो वो कैसे हो सकता है? नहीं, उसके ऐसी स्टोरी बनाते हैं, हमको लगता है अपने जैसी, हाँ, खुद का जैसा। मनुष्य का दैवीकरण और भगवान का मानुषीकरण, ये हमारा सनातन धर्म है। भगवान का मानुषीकरण, देखो हमारे जैसे दिखते हैं, हस्बैंड वाइफ खड़े हैं, अच्छे से कपड़े डाले हैं। वैसे तो बोलते हैं शास्त्र में निर्विकार, निर्गुण निराकार भगवान है, तो कैसे खड़े हो गए? सोचना पड़ेगा। आई थॉट आई विल पुट सम टाइम इन दिस बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। जो लिखा हुआ है उसके पीछे का मीनिंग समझना पड़ेगा, अर्थ समझना पड़ेगा। जभी, क्यों समझना पड़ेगा? जभी वो हमारे अंदर आएगा। अर्थ समझने के बाद ही उसके जो विचार है वो हमारे में दृढ़ होंगे। फिर मंदिर में आइए और मूर्ति के सामने देखिए, माता जी दिख रहे, कैसे माता है हमारी, देखिए कितनी शौर्य वाली है, देखिए शेर के ऊपर बैठी है, हाथ में आयुध है, डरती नहीं है। ऐसी माता का मैं बेटा हूं, मैं डरूंगा? मैं नहीं डरूंगा। रिलेशनशिप बांधेंगे तो नहीं डरेंगे, मंदिर में आएंगे तो रोएंगे नहीं। खाली रोने के लिए और मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए आइए मंदिर में, मिलने के लिए आइए। मंदिर में आए, जरूर से आना ही चाहिए, मूर्ति होनी चाहिए, मूर्ति पूजा होनी ही चाहिए, मगर मिलने के लिए आओ, मांगने के लिए या डरने के लिए, रोने के लिए नहीं आओ। ये हमारी ये सब मूर्तियां कहती हैं। रोते रोते नहीं, मांगने के लिए नहीं। अरे मुझे ये भी मांगने का गलत नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं मांगना गलत नहीं है। मां के पास नहीं मांगेंगे तो किसके पास मांगेंगे? जरूर से मांगेंगे, मगर मां पहले रिलेशनशिप तो बांधो, मैं तेरा बेटा हूं, जब भी मां भी सुनेगी ना। रिलेशनशिप नहीं है, ऐसे ही मांगेंगे, किसके पास से मां देगा? कोई नहीं देगा। तो ये तो मां है, कैसे देगी? नहीं देगी। नहीं, उसने मंदिर के चक्कर लगाए, 100 चक्कर लगाए, फिर भी नहीं हुआ। हाँ, इसलिए क्या? वो गुस्से में आ गया, भगवान नहीं है। ऐसा नहीं होता। रिलेशनशिप बांधो, उसके पीछे का अर्थ समझो। इसके लिए इतने सारे भगवान और इसके लिए इतने सारे पुराण, इसके लिए इतने सारे पुराण हैं। पुराण इसीलिए है। स्टोरी आती है, एक दिन जा रहे थे शंकर भगवान और पार्वती जी, ऊपर से जा रहे थे, नीचे एक देखा एक गरीब ब्राह्मण बैठा है, हो गई स्टोरी चालू। ये पुराण है। पुराण में स्टोरी ना देखते हुए उसके पीछे का मैसेज देखना चाहिए। मैसेज क्या है? पुराण में मैसेज सही होता है, मगर उसका स्टोरी वाला मीनिंग हम, और क्या है, पुराण स्टोरी है ना, तो इजी है। इट इज इजी टू रिमेंबर, स्टोरी इज इजी टू रिमेंबर। गीता का एक श्लोक बोलेंगे, वो आदमी परेशान हो जाएगा, नहीं याद रहता। तो इसके लिए उसके पीछे स्टोरी, इसलिए पुराण आए। पुराण आने का रीजन भी है, हमारे लोगों ने इतने सारे पुराण लिखे इसीलिए लिखे, यही रीजन है उसके पीछे। वो गलत नहीं है, वो सही है, मगर उसके पीछे का मीनिंग ढूंढो। जैसे हम लोगों ने बोला अभी, ऐसे शब्दार्थ, भावार्थ
तत्वार्थ और गुणार्थ, ये चार मीनिंग ले लो इसके सबके अंदर से। आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन। सत्यनारायण की कथा में वो जो कलावती कन्या है वो प्रसाद खाकर आई, उसका पति मिल गया। प्रसाद खाओ तो सुखी हो जाओगे। एक केला खाने से क्या मेरे सब पाप धुल सकते हैं? तो सब लोग केला खाएंगे? ऐसा नहीं होता। उसके पीछे का मीनिंग समझना पड़ेगा, उसके पीछे का तत्वार्थ और गुणार्थ समझना पड़ेगा, नहीं तो हम सिर्फ स्टोरी सुनते रह जाएंगे। रिपीटेड 400 बार भी सत्यनारायण की कथा सुनेंगे फिर भी हमारे में बदलाव नहीं आएगा। वो हमारा सबका अनुभव है। इसलिए कोई भी जो विचार होते हैं उसको पहले अंदर लेने चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। So that was Ditya Trupto Nirashraya, which we took last time. So we'll go to the 21st sloka now. Nirashiryat chittatma tyakta sarva parigraha shariram kevalam karma kurvannapnoti kilbisham. What is the meaning? निराश्रय, फ्री ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो आशा से रहित है। निराश्रय, आशा नहीं है जिसे, निराश्रय, फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। एंड चित्तात्मा, माइंड एंड इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि दोनों से जो जिसके पास एक्सपेक्टेशन नहीं है, और त्यक्ता, जिसने छोड़ दिया है, सर्व परिग्रह, ऑल परिग्रह, द सेंस ऑफ ओनरशिप, जिसने ओनरशिप सब छोड़ दी है। शारीरम केवलम कर्मा, और ये जो शरीर दिया हुआ है वो सिर्फ कर्म करने के लिए है। ऐसा कुर्वन न परफॉर्मिंग, न अपनोती, ही इज नेवर अपनोती, इज नेवर इनकरिंग किल विषम, पाप नहीं करता, पाप नहीं करता। अच्छा, तो उसमें मेरा क्या, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसमें क्या समझूं? हिंदी में ऐसे ज्ञानी जन फल की आकांक्षाओं और ममत्व की भावना से मुक्त होकर अपने मन और बुद्धि को संयमित रखते हैं, अपरिग्रह, संयमित रखते हैं, और शरीर से कर्म करते हुए भी कोई पाप अर्जित नहीं करते। दिस इज आंसरिंग सो मेनी क्वेश्चंस। कैसे पाप मुक्ति हो? एक बार गांधी जी के पास में एक आदमी का एक पत्र आया कि आप अहिंसा में मानते हैं, बहुत सारा अहिंसा करते हैं, तो हम जब चलते हैं तो हमारा पैर जमीन के ऊपर गिरता है और नीचे कभी कभी छोटे मोटे मकोड़े, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो अभी वो तो हिंसा हुई, तो क्या करना चाहिए? ऐसा क्वेश्चन है। वो बाजू में वल्लभ भाई पटेल बैठे थे, उन्होंने बताया उसको बोलो पांव सिर के ऊपर रख के चलो। जो चीज प्रैक्टिकली नहीं है, अहिंसा शब्द का जिसको मतलब ही नहीं पता है, अहिंसा सत्यम क्रोधो आएगा आगे। अहिंसा किसको रखनी चाहिए? अभी हम पहुंचे नहीं है, 18th चैप्टर में आएगा 42 to 46 श्लोक। अहिंसा किसका गुण है? ब्राह्मणों का गुण है, क्षत्रिय का गुण नहीं है, क्षत्रिय का गुण नहीं है, ब्राह्मणों का गुण है। ब्राह्मण को अहिंसा रखनी चाहिए। जो विद्या के लिए, जो ज्ञान के लिए जो कर्म करता है उसको अहिंसा रखनी चाहिए। जो शरीर, जो देश की रक्षा करता है वो कैसे अहिंसा रखेगा? एंड दैट इज एग्जैक्टली द मिस्टेक अशोका डिड। अशोक ने यही मिस्टेक किया, सम्राट अशोक ने। उसने अहिंसा का रास्ता अपना। राजा अहिंसा का रास्ता नहीं अपना सकता, यह समझना पड़ेगा। क्षत्रिय को अहिंसा नहीं चलेगी। जिसको प्रोटेक्शन करना है वो कैसे अहिंसक रहेंगे? हमारे जो पुलिस वाले सब गन लेके घूमते हैं, यहां गन, ये वो फला ढिकना, बुलेट प्रूफ जैकेट। क्यों भैया? अहिंसा रखो ना। कहां कौन से रूल लागू होते हैं वो तो समझो। एनीवे, लेट अस फोकस टुडे। आई एम डिवेटिंग टू मच, सो लेट अस फोकस इन द श्लोका। कैसे पाप नहीं होगा? अपना कर्म करने से पाप नहीं होगा। तो कैसे पाप नहीं होगा? ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी।
निराश्चर्य, जिसको कोई आशा नहीं है। हाँ। अभी हम बोलते हैं आशा ही तो है। वी नो द स्टोरी ऑफ पेंडोरा। पेंडोरास बॉक्स में क्या है? वी नो द स्टोरी ऑफ पेंडोरा। मोस्ट ऑफ द पीपल में बी नोइंग। यहाँ की यूरोपियन स्टोरी है। पेंडोरा नाम की लड़की थी, जिसको नहीं पता है उसके लिए। पेंडोरा नाम की एक लड़की थी, पूरी दुनिया बहुत खुश थी, ये सब कुछ अच्छा था, कुछ भी बुरा नहीं। वो दुनिया में एक भी चीज बुरी नहीं थी, सब अच्छा ही अच्छा था। तो शैतान क्या कोई भी किसको ऐसा दिमाग में हुआ कि ये जो दुनिया है उसके लिए मैं कुछ बुरा करना चाहता हूँ, तो उसने उसको एक पेटी दी। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द स्टोरी। तो बेसिकली पेंडोरा को एक बड़ा सा पेटी दिया, वो क्या बोलते हैं बॉक्स दिया। उसको बोला ये बॉक्स मत खोलना, ये बॉक्स खोलोगे तो परेशानी हो जाएगी, इसलिए बॉक्स मत खोलना। अभी लड़की थी, ज्यादा करके लड़की यानी लेडी, आप उसको बोलो ये मत करना तो सबसे पहले तो वो मुझे करना ही है, और क्यों नहीं करना। हाँ, वो उनका नेचर है, उनको ऐसे भगवान ने बनाया है, ब्लेम करने की बात नहीं है, उनको भगवान ने ऐसा बनाया। हाँ, एक बार बोलो ये नहीं करना, देखो एक बार बोल के देखो ना, सबको अनुभव है, चाहे वो बेटी रहे, पत्नी रहे, माँ रहे, कोई भी रहे, ऐसा नहीं है। हाँ? तो पेंडोरा के भी बोला, उसको पता था इसको बोलूंगा ये खोलेगी ही। हाँ, उसको दे दिया। पेंडोरा ने बोला थोड़े दिन हो गए, अरे इसमें क्या है, इसमें क्या है, वो बहुत उसको ये बढ़ने लगा। शी वॉज वेरी एंक्शियस, क्यूरियस। हाँ, नहीं मैं थोड़ा खोल के बंद कर दूंगी, थोड़ा अंदर देखूंगी और बंद कर दूंगी। हाँ, पेंडोरास बॉक्स, वेरी फेमस स्टोरी। हाँ, वो यहाँ का पुराण है, यहाँ का पुराण। हम पुराण की बात करते हैं, यहाँ का पुराण है। तो पेंडोरा ओपन द बॉक्स, वो जैसे ओपन किया उसमें तो पूरा दुखी दुख था, खराबी चीज थी, दुख, ईर्ष्या, वेर भाव, ये जितनी भी बुराइयां हैं दुनिया की, वो सबकी सब वो बॉक्स में पैक थी। इसीलिए तो दुनिया बहुत खुश थी। पेंडोरा ने बॉक्स खोल दिया। पेंडोरा ओपन द बॉक्स एंड द होल वर्ल्ड बिकम अनहैप्पी। हाँ, दुख, पीड़ा, रोग, दारिद्र्य, दैन्य, द्वेष, ये वो वेर भाव, सब जितने भी दुर्गुण है सबके सब अंदर भरे हुए थे, वो बाहर निकल के उड़ गए। अभी उसको तो पकड़ के वापस आना इम्पॉसिबल है। वो पेंडोरा ने बोला ओ अभी तो पूरी दुनिया दुखी हो जाएगी, क्या होगा। लास्ट में वो बॉक्स में से एक परी निकली। वो बॉक्स में से एक परी निकली। वो परी को बोला तू कौन है, हु आर यू? एंड द फेरी टोल्ड आई एम द होप, माई नेम इज होप। मेरा नाम क्या है? आशा। हाँ, मेरा नाम है आशा, होप। तू क्या करेगी? मैं दुनिया में जिंदगी चलाऊंगी, कितना भी दुखी होने दो। हाँ, कितना भी दुखी होने दो, कितना भी गरीब होने दो, कितना भी परेशान होने दो, आदमी को आशा है। आशा है तो जिंदा है, आशा है तो चलता है। हाँ, पूरा ज्योतिष का धंधा इसी के ऊपर ही चालू है, आशा के ऊपर। क्या है आपका? शनि वक्री है, ये है राहु केतु, क्या मुझे नहीं मालूम भाई, माफ करना। हाँ, ये हो गया तुम्हारे 8वें खाने में, ये है 10वें स्थान में, ये है चंद्र के ऊपर इसकी नजर है, वगैरह वगैरह, ढिकना फलाना। भृगु ऋषि को प्रणाम करते हैं, उन्होंने शास्त्र बनाया, मगर हम गीता पढ़ने वाले लोग हैं। फिर आशा। हाँ, आप अगर पोखराज का एक नंग यहां लगा दो तो आपको कम हो जाएगा आशा। आपको शनि की पनौती है सिर्फ 2.5 साल की, 2.5 साल संभाल के लो, आगे बस। हाँ, आशा, आशा से आदमी चलता है। आशा चाहिए, आशा के बगैर तो चलेगा ही नहीं। हाँ? आशा के बगैर नहीं चलेगा, आशा चाहिए। तो यहां तो भगवान ने कहा निराश्चर्य। अरे ये क्या, जिसको कोई आशा ही नहीं है तो चलेगा कैसे आदमी? ये तो गलत लग रहा है, नहीं क्या? भगवान ने कहा निराश्चर्य, निराश्चर्यत चित्तात्मा, जिसके दिमाग में, इन माइंड, चित्त और आत्मा में कोई आशा ही नहीं है। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? किस लिए कहा? उसका क्या मतलब है? आशा नहीं होगी तो मैं कैसे काम करूंगा? मेरा डायरेक्शन कौन सा रहेगा? हाँ, कनाडा आए, कुछ अच्छा धंधा पानी करूंगा, अच्छा से धंधा बढ़ेगा, आशा इसलिए कनाडा है। नहीं तो इतनी ठंडी में कौन आएगा इंडिया से? कौन आएगा? हाँ, उधर बोलो चलो हिमालय चलो, नहीं जाएंगे, क्यों? बहुत ठंडी है। और कनाडा में भी उतनी ठंडी है। आशा, आशा से हाँ, वहां जाऊंगा, पढ़ूंगा, फिर वर्क परमिट, वर्क परमिट के बाद में पीआर एप्लीकेशन, हाँ, फिर पीआर हो जाऊंगा। हाँ,
सिटीजन हो जाऊं, आशा इच्छा। यहां भगवान बोलते हैं भाई निराश्चर्य क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, और क्या इसका मतलब आशा नहीं रखना ऐसा है? इसका मतलब क्या है? शारीरम केवलम कर्म, मुझे जो शरीर दिया गया है, सो फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड अवर सेल्स। लास्ट टाइम ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट इट। पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश। लास्ट टाइम वी टॉक। हम कौन है? हम शरीर है। पहले जो अन्न खा के जो बनता है वो शरीर है, इसलिए हम अन्नमय कोश। उसके बाद में वो शरीर को चलाने के लिए अंदर चैतन्य चाहिए, इसलिए प्राण है, वो प्राणमय कोश। मगर वो चलेगा कौन सी डायरेक्शन में, वो डिसाइड कैसे करेंगे? आज मंदिर जाना है, कल जॉब जाना है, परसों ये करना है, डिसाइड कौन करेगा? इसलिए मन चाहिए, मनोमय कोश। और मन में ही आशा होती। अगर आशा नहीं होगी तो कैसे चलेंगे? मगर उसमें समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। लास्ट टाइम ऑल्सो वी टॉक्ड इट इन डिटेल। शारीरम केवलम कर्म, मुझे जो दिया गया है, ये जो शरीर है वो भी मेरा नहीं है, ये क्लियर कट होना चाहिए। ये शरीर मेरा नहीं है, मैं अलग हूं, मैं आनंदमय कोश और उसके ऊपर हूं, मैं बॉडी नहीं हूं। हाँ, बॉडी से मैं आनंद लेता हूं, मगर वो सुख ले सकते हैं, आनंद तो नहीं ले सकते। आनंद तो अंदर से आता है। कोई कविता सुन के कितना आनंद आता है, वो कहां से आता है? आनंद। मैं शरीर हूं, अच्छा मैं शरीर हूं तो काम कैसे करेंगे, आशा कैसे रखेंगे, जॉब कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। जजमेंट, जब जज होता है, देयर इज अ जज, द जज इज गिविंग जजमेंट। उसके सामने एक केस आया, मर्डर, ब्रूटल मर्डर। सो जज ने देखा, जज लुक्ड एट द जो कुछ भी विटनेसेस थे, आज द ज्यूरी, ज्यूरी ने भी वर्डिक्ट दिया, ज्यूरी ऑल्सो गेव ए वर्डिक्ट, एंड देन जज इज गिविंग ए जजमेंट एज पर दिस एंड दिस, आई एम गिविंग द डेथ सेंटेंस टू द पर्सन। मौत की सजा सुना दी जज ने। हम जज को खूनी गिनते हैं? उसने किसी की मौत की सजा सुना दी? नहीं गिनते। वी डोंट से द जज इज ए किलर, इवन दो ही हैज ऑर्डर्ड टू किल। द जज हैज ऑर्डर्ड टू किल, but we don't tell that the judge is a killer. The judge himself doesn't feel that I am a killer. Why? ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है, मैंने ड्यूटी की। शारीरम केवलम कर्म, मेरी ड्यूटी जो मुझे दी गई है, ये शरीर दिया गया है, जो वर्ण में मैं पैदा हुआ हूं, वो मैं ड्यूटी करूंगा। इसीलिए तो भगवान ने पूरी गीता कही ना अर्जुन को, तुमको लड़ना पड़ेगा। युद्धाय कृत निश्चय, तुम क्षत्रिय हो, तुमको सत्य के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करके लड़ेंगे, ऐसा करके गिनेंगे तो अनहैप्पीनेस चली जाएगी। आशा नहीं रखने का मतलब ये नहीं है कि आप काम के लिए कोई डायरेक्शन मत रखो। इट इज नॉट टू बी ए डायरेक्शनलेस, इट इज टू बी ए सेल्फलेस। दैट इज द मोटिव बिहाइंड दिस वर्ड। आशा नहीं रखना। शारीरम केवलम कर्म। Why? Because the body is given to you. Just like for the judge, the position is given to him to do the actions. It is a body given to you for the actions. Whatever you are born with, whatever situation and position you are born with. And then another word here, tyakta, is very important. Tyakta sarva parigraha, ownership छोड़ देना. And this word, abandon, ownership छोड़ देना, त्यक्त. Also, it has been so much misunderstood. त्याग, त्यक्त. The moment tyakta word comes in our mind, we think that God can only be achieved when we leave the world. और वर्ल्डली मैटर, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या? संसार छोड़ दो, दुनिया मोह माया। ऐसे ही सुनते सुनते हमारी जिंदगी आधी निकल जाती है ना। सब छोड़ दो, जितना छोड़ा उतना अच्छा। बट दैट इज नॉट गीता, दैट इज बुद्धिज्म। अबेंडन, पत्नी यशोधरा और राहुल को छोड़ने के बाद में ही उनको ज्ञान हुआ। छोड़ दो। नो, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। छोड़ना मतलब कर्म से भाग जाना नहीं। छोड़ना मतलब सब कुछ छोड़ के कनखल में चले जाना नहीं।
Abandon doesn't mean that you leave the world and you leave the material world. You leave your karma. That is not abandoning here. What is abandoning? Tyakta parigraha, ownership छोड़ दो. Just like your body is not yours, but you are doing the action with the body. In the same way, the things which are with you are not owned by you. It is given to you. This concept is extremely important. आपको दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? शरीर, बुद्धि, स्किल सेट. हाँ, जो जो चीज आपको लगता है मेरा है, उसको छोड़ दो. ऐसा कहा. ऐसे कैसे छोड़ दें? हमने इतनी मेहनत की है. हाँ, वी हैव कम टू कनाडा, सो मच हार्ड वर्क. ऐसे कैसे बोलेंगे? मैंने ये सब इन्हें तो मेहनत किया, जब भी तो बंगलो बना है. हाँ, अच्छा सा $2 मिलियन का बंगलो है, इतनी अच्छी गाड़ी है, ये सब मेरी मेहनत से है. मेरा नहीं है कैसे मानेंगे? इम्प्रैक्टिकल लगता है. हाँ, बड़े बड़े महात्मा, संत महात्मा बोलते हैं दुनिया तेरी नहीं है, हाँ, मोह माया है, ऐसे बोलते हैं. सब छोड़ दो. छोड़ तो सकते नहीं. वी कैनॉट लिव, इवन प्रैक्टिकली वी कैनॉट लिव. दुनिया में सब लोग साधु हो जाएंगे तो कल बस कौन चलाएगा और रास्ते कौन साफ करेगा? हाँ, काम कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? खेत में खाना कौन उगाएगा? सबके सब साधु. चलो मान लो सबके सब साधु हो गए, नए बच्चे कहां से पैदा होंगे? दुनिया ही बंद हो जाएगी. वो तो प्रैक्टिकल ही नहीं है. इट इज इम्पॉसिबल एंड इम्प्रैक्टिकल. इसलिए वो तो छोड़ना है ही नहीं. तो ओनरशिप छोड़ना का मतलब क्या? ओनरशिप छोड़ दो. ओनरशिप छोड़ दो. पहले तो छोड़ दो वर्ड ही. अपरिग्रह, त्यक्ता परिग्रह, ओनरशिप रखना. इट इज गिवन टू यू. Just like prasad, this whole thing is coming. Yes, a net. It is like a fishing net. If you have seen the fishing net, you will be able to understand. कोई कहेंगे ये यहाँ से गीता का बैठ के मच्छी पकड़ने की भी नेट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा भी बोले. फिशिंग नेट. फिशिंग नेट में क्या था? इट इज नीटेड इन, ऐसा अंदर 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 अंदर. एक भी तार उसमें से टूट गया ना, फिशिंग नेट खलास, फेंक दो. आप उसको यूज नहीं कर सकते. यू हैव टू मेक अनदर जॉइंट या अनदर थिंग. उसमें एक भी तार टूट गया ना, खट करके सब छूट जाएगा. बस एग्जैक्टली सेम थिंग इज हियर. द मोमेंट यू अंडरस्टैंड वन पार्ट, ऑल अदर पार्ट्स आर वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड. दैट इज हाउ इट इज. तो शारीरम केवलम कर्म, द पोजिशन विच इज गिवन टू यू लाइक ए जज, यू डू योर ड्यूटी. एंड त्यक्ता डजंट मीन अबैंडनिंग, बट अबैंडनमेंट ऑफ डिजायर एंड एक्सपेक्टेशन इन द इंटेलेक्ट. Only abandoning will create lot of problem. Nobody can, the whole society cannot work. It will stop. Samrat Ashoka did that mistake in our history. Kshama, Daya, Karuna. That is what Samrat Ashoka adopted from Buddhism. What happened? You see Afghanistan. Afghanistan was one of the biggest monasteries of Buddhism. दुनिया में सबसे बड़ी से बड़ी बुद्ध की प्रतिमाएं अफगानिस्तान में भी है. थी, अभी नहीं, उसको तोड़ दी गई. बुबियान, हाँ, वेरी बिग. क्यों? क्योंकि राजा ने बोला कि अहिंसा रखो. गलत डिसीजन लिया गया. अबेंडन, छोड़ दो. ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए. ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए. इवन पायस पर्सन, हमारे दिमाग में क्लियर है. हाँ, पायस. कोई बोलेंगे साधु कौन? किसी को बोलेंगे हमारे घर पे एक साधु महाराज आए थे. यू टेल समवन वी हैड ए साधु महाराज कमिंग एट अवर होम. व्हाट इज द इंप्रेशन इन अवर माइंड? साधु महाराज मतलब कौन? जो इसने सब छोड़ दिया है, बड़ी लंबी दाढ़ी बढ़ाई है, केसरी वाले कपड़े डाले हैं. हाँ, दैट इज अवर इंप्रेशन ना. बड़े बड़े बाल रखे हैं. हम सोच ही नहीं सकते कि पवित्र आदमी वो भी हो सकता है जिसने शादी बनाई है, जिसके घर पे बच्चे हैं. 8-10 बच्चे घूम रहे हैं, माँ है, बाप है, सब लोग हैं, अच्छे से रह रहे हैं, प्यार से, मोहब्बत से. हम सोच नहीं सकते कि वो आदमी भक्त हो सकता है. हम उसको साधु बाबा सोच ही नहीं सकते. हमारे दिमाग में इतना मिसकंसेप्शन दिमाग में भर दिया गया है. हाँ, हमारे सब भगवान को सबको बच्चे हैं. दिस इज आयरनी. मैं हमेशा आई रिपीटेडली टेल दैट, आयरनी है ये. हम लोग उसको पवित्र गिनते हैं जिसने सब छोड़ दिया है, मगर हमारे जो भगवान है उसने सब हाथ में रखा है. उसने शस्त्र हाथ में रखे हैं, उन्होंने गहने पहने हुए हैं,
उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े डाले हुए हैं। हम जिसकी भक्ति करते हैं वो तो ऐसा है, और हमारी कंसेप्ट में यह है कि हम सब छोड़ देंगे तो हम सबसे ज्यादा पवित्र है। इजंट इट आयरनी? ये आयरनी है। मुझे सबसे, हम लोग, इमेजिन यू आर वॉकिंग अलोंग द रोड एंड देयर इज अ बेगर ऑन द साइड ऑफ द रोड एंड यू विल से आई वांट टू बी द रिचेस्ट पर्सन लाइक दिस बेगर, इजंट इट? ऐसा बोलेंगे कभी? आई वांट टू बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड लाइक दिस बेगर? यू डोंट, यू डोंट। फिर हम बोलते हैं हम सबसे ज्यादा त्यागी और पवित्र रहना बनना पसंद करेंगे, क्यों? भगवान के जैसे। अरे मगर उन्होंने तो त्यागी दिखता नहीं है कहीं। सो अंडरस्टैंड, हाँ, पीछे का भाव, तत्व, उसके पीछे का तत्व समझना पड़ेगा। मैं उनकी उपासना नहीं कर रहा हूं, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। मैं उनका उपहास नहीं कर रहा हूं जिन्होंने त्याग किया हुआ है। हमारे बड़े बड़े भक्त हो गए, सबने शादी बनाई, सबके बच्चे थे। नरसिंह मेहता 2 बच्चे थे, तुकाराम बच्चे थे, सबके बच्चे थे, सभी संसारी थे। हमारे सब भगवान संसारी हैं। तो फिर पवित्र होना मतलब त्याग करना कहां से आया? और यहां भी लिखा है त्याग कर, हाँ, त्यक्ता लिखा है। तो त्याग कैसे? त्याग नॉट ओनरशिप, हाँ, उसके पीछे का ममत्व, ममत्व रखना गलत है, रखना गलत नहीं है। ममत्व रखना गलत। ममत्व क्यों रखते हैं? क्योंकि ये मेरा है। मैं कौन हूं? पहले तो ये शरीर ही अगर मेरा नहीं है, जो ओनरशिप मेरी बॉडी की नहीं है, तो फिर मेरे को बाकी चीजों की ओनरशिप नहीं लगेगी। इसलिए मैं काम करते रहूंगा, मैं उसका सुख भी प्राप्त करूंगा। मेरी गाड़ी भी रखूंगा, गाड़ी में अच्छे से बढ़िया से मैं गाड़ी चलाऊंगा, मेरे बंगलों में रहूंगा, फिर भी उसमें जो ममत्व है वो निकल जाएगा। सुख ही सुख है। यही त्यक्त्वा है। The word tyaktva is extremely important to understand. It is not abandonment of a thing. It is not abandonment of a material. It is abandonment of the ownership inside it. हाँ, अपरिग्रह, परिग्रह छोड़ देना, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। Today we have already gone 1 minute over because I wanted to complete. So this session is the last one of this year. अभी 2 next और वेडनेसडे आने वाले हैं, बट नेक्स्ट 2 वेडनेसडे देयर विल बी नो प्रवचन। हाँ, छुट्टी होनी चाहिए, क्रिसमस मनानी है ना, सबको है। हाँ, तो ऐसा जब मूड रहेगा ना, शादी का मूड है, तो वो टाइम पे शास्त्र की बात नहीं होती है, अंदर हजम नहीं होती। सो वी आर गोइंग टू कीप 2 वेडनेसडेज अध्याय नहीं करेंगे, एंड वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वेडनेसडे इन द कमिंग ईयर, which will be 7th of January 2026. Till then, I wish everyone a happy time. Enjoy your time with the family, celebrate the vacation, take care of your health, and we will meet again on 7th of January at Jai Durga Temple, 6 to 6:45. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।